to worship a man that all belongs to Jesus Christ. No, sir, this is no man's hand like that. No, indeed. So I didn't do it. मगर किसी इंसान को सजदा करना, ये सब कुछ सिर्फ यीशु मसीह के लिए है, समझे? किसी और के लिए हरगिज नहीं जनाब। मैं इस तरह किसी आदमी के हाथ को नहीं चूम सकता, बिल्कुल नहीं। चुनाचे मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। But I got to go all through the Vatican. बस मैं सारे वेटिकन में घुमा फिरा। Why you couldn't buy it with $100 billion? Well, you. यही वजह है कि आप इस चीज को सैकड़ों बिलियन डॉलर के साथ भी खरीद नहीं सकते। ठीक है, आप देखें। And just think, the wealth of the world, the Bible said, was found in her. और जरा सोचें कि दुनिया की दौलत, जैसा कि बाइबल कहती है कि ये सारी उसमें पाई जाती है। Oh, just think of the great places, the billions times. Why did communism raise up over here in Russia? हो, जरा अरबों की उन बड़ी बड़ी जगहों के मुतालिक सोचें। रूस में इश्तराकियत क्यों उभरी? It just makes me sick at my stomach to hear so many preachers holler about communism, and they don't even know what they're crowing about. ये बात मुझे बहुत तंग करती है जब मैं ये सुनता हूँ कि मुनाद इश्तराकियत के मुतालिक वावेला कर रहे हैं, और यहाँ तक वो ये भी नहीं जानते कि वो उसके मुतालिक कौवे की तरह सिर्फ कां कर रहे हैं। Right. Communism ain't nothing. It's a tool in the hand of God to bring revenge upon the earth for the blood of the saints. That's right. ये सच है, कम्युनिज्म कुछ भी नहीं है। ये खुदा के हाथ में हथियार है कि जमीन पर मुकद्दसीन के खून का बदला लिया जाए। ये दुरुस्त है। And as the church is taken away, Rome and the Jews will make a covenant with one another. The Bible said they would with the holy people. And now notice they'll make it because why? This nation is going to be busted. And the rest of the world that's on the gold standard is busted. You know that. और देखें, कलीसिया के उठाए जाने के बाद रोम और यहूदी एक दूसरे के साथ अहद बांधेंगे। बाइबल कहती है वो मुकद्दस लोगों के साथ अहद बांधेगा। और अब गौर करें कि वो अहद बांधेंगे क्यों? क्योंकि इस कौम को पस्त होना है और दुनिया की दीगर कौमों को भी सोने के मेयार पर पस्त होना है। आप इस बात को जानते हैं। If we're living off of taxes, due bills for 40 years from now, where are we at? There's only one thing can happen. That's to call in the currency and pay off the bonds, and we can't do it. Wall Street owns them, and Wall Street's controlled by the Jews. The rest of it's in the Vatican, and the Jews has got the rest of it in Wall Street with the commerce of the world. अगर हम बिला टैक्स रह रहे हैं और हमारे बिल अब से 40 साल तक वाजिब अदा हैं, तो हम कहां पर हैं? अब सिर्फ एक ही चीज मुमकिन हो सकती है कि करेंसी को समेटा जाए और बॉन्ड्स अदा किए जाएं, और ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि वॉल स्ट्रीट उनकी मलकियत है और वॉल स्ट्रीट पर यहूदियों का कब्जा है और उसका बाकी मांदा वेटिकन में है, और जो कुछ बाकी है वो वॉल स्ट्रीट में यहूदियों के पास है जिससे वो दुनिया के साथ तजारत करते हैं। We can't call it in, and if they could do it, you think these whiskey guys and all these tobacco people with billions times billions of dollars a year and write off all their income tax for old vulgar pictures and things like that? लेकिन हम उसे अपना नहीं कह सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि ये विस्की पीने वाले लोग और ये सिगरेट नोशी करने वाले लोग जो कि साल में अरबों अरब डॉलर लेते हैं और उनकी पुरानी फैश फिल्मों के और ऐसी ही चीजों के बदले लाखों डॉलर सालाना इनकम टैक्स को मनसूख कर देते हैं। Go out in Arizona there and buy millions of acres of land of thousands and dig down big wells at $50,000 and pay it off with income tax. और फिर एरिजोना में जाकर हजारों या लाखों एकड़ में जमीन खरीद लेते हैं और $50,000 के बड़े बड़े कुएं बना देते हैं और इनकम टैक्स के साथ उसे अदा करते हैं। And they'll put you in jail if you don't pay yours. But they write it off and throw up wells and send bulldozers in. And what do? They put housing projects in there, and the next term around with their money they made, they got to make an investment and put houses, projects in there and sell them for millions of dollars. You think them guys is going to compromise to change the currency? और अगर आप अपना हिस्सा अदा नहीं करते तो वो आपको जेल में डाल देंगे, लेकिन उन्होंने
अपने सारे खाते खत्म कर दिए हैं और कुओं पर बलडोजर चला दिए हैं और उनको बंद कर दिया है। और फिर वो क्या करते हैं, और अगली मर्तबा वो वहां अपने उन्हीं पैसों के साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट चलाते हैं और वहां पर सरमायाकारी लगाते हैं और फिर वहां पर प्रोजेक्ट चलाते हैं और घर तमीर करते हैं और फिर उनको लाखों डॉलर में बेचते हैं। आपका क्या ख्याल है, वो लोग करेंसी तब्दील करने में समझौता करेंगे? Like this fellow down here, and what's his name, Castro did? He done the only smart thing he ever did do then. When he destroyed the bombs. Paid them all for destroy. बिल्कुल उस आदमी की तरह। उसका क्या नाम है? जैसे कैस्ट्रो ने किया, और उसने ऐसी ही चालाकी की जो उसने पहले कभी ना की थी। तब जब उसने बॉन्ड्स को तबाह कर दिया, उसने उनके जरिए अदायगी की और फिर उन्हें तबाह कर डाला। Notice, but we can't do that. These guys won't let the rich merchants of the earth hold it. And there's only one thing to do. The Catholic Church can pay it off. She's the only one's got the money. And she can do it. And she will do it. ध्यान दें, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। वो लोग हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि दुनिया के अमीर तरीन तजारतकार उसको संभाले हुए हैं। और इसके बाद अब सिर्फ एक ही बात करने को नजर आती है कि ये सब कैथोलिक कलीसिया ही अदा कर सकती है, क्योंकि पैसा सिर्फ उसके पास है और वो ऐसा कर सकती है और वो ऐसा करेगी। And in doing this to get it, she'll compromise with the Jews and make a covenant. And when she makes this covenant with the Jews, now remember, I'm taking this from the Scripture. और ऐसा करने से वो उसे हासिल कर लेगी, इसलिए वो यहूदियों के साथ समझौता करेगी और अहद बांधेगी। और जब वो यहूदियों के साथ ये अहद बांधेगी, अब याद रखें कि मैं ये कलाम से पेश कर रहा हूँ। And now, when she does this and makes this covenant, we notice in Daniel 8:23 and 25, he will cause craft to prosper, and craft is manufacturing in his hand. And he makes this covenant with the Jews. और जब वो ऐसा करती है और ये अहद बांधती है, तो हमने दानियल 8:23 और 25 में देखा है कि वो अपनी चतुराई से ब्रूमंद होगी, और चतुराई सन्नतकारी है जो उसके हाथ में है, और इस तरह वो यहूदियों के साथ अहद बांधता है। And in the midst of this 3.5 years, he breaks his covenant as soon as he gets the thing wrapped up and gets the money of the Jews tied up. और 3.5 साल के अरसे के दौरान वो अपना अहद तोड़ता है, और जो ही ये बात उसके इख्तियार में आ जाती है, तो वो यहूदियों का पैसा काबू कर लेता है। And when he does that, oh my, he's called the Antichrist until the end of the church age, for he and his children are against Christ and the Word. This man's called the Antichrist. और तब वो ऐसा करता है, हो मेरे खुदाया, हो मेरे खुदाया। देखें, जब तक कलीसियाई जमाने का इख्तिताम नहीं हो जाता, वो मुखालिफ मसीह कहलाता है, क्योंकि वो और उसकी औलाद मसीह और कलाम के खिलाफ हैं। वही शख्स मुखालिफ मसीह कहलाता है। Now he's going to hold the money. And that's where I think he'll come in. Just a minute, I'll say this, then I'll go back to it a minute. अब देखें, वो पैसे पर काबिज होने वाला है। मेरा अपना ख्याल है कि वो यहीं से अपना काम शुरू करेगा। 1 मिनट ठहरें। जब मैंने ये बात कही है, तो फिर मैं 1 मिनट के लिए इसमें वापस जाना चाहता हूँ। He's called the Antichrist, and will be called the Antichrist in the sight of God until the end time. Now, but then he'll be called something else. उसे मुखालिफ मसीह कहा गया है, और जब तक आखिर वक्त नहीं आ जाता, वो खुदा की नजर में मुखालिफ मसीह कहलाएगा। अब देखें, फिर उस वक्त वो कुछ और कहलाएगा। Now, when he gets the money all under control, then he'll break this covenant with the Jews as Daniel here said he would do it. In the midst of the last half of the 70 weeks of Daniel. अब जो ही वो तमाम पैसे पर अपना तसल्लुत जमा लेगा, तो वो यहूदियों के साथ अपना अहद तोड़ डालेगा, जैसा कि दानियल ने बयान किया है कि वो करेगा। वो दानियल के 70 हफ्तों के आखिरी आधे हिस्से में अपना अहद तोड़ डालेगा। And then, brother, what will he do? He'll have
all of the world trade and the commerce a pact with the world, because he'll hold the wealth of the world completely. And during that time, them two prophets will rise on the scene and call that 144,000. उस वक्त मेरे भाइयों वो क्या करेगा? वो दुनिया के साथ मुआहदा करेगा और दुनिया का पैसा और तजारत सब कुछ उसके इख्तियार में होगा और दुनिया की दौलत पर वो मुकम्मल तौर पर काबिज हो जाएगा। और उस दौरान वो दो नबी मंजर पर होंगे और 1,44,000 को बुलाएंगे। Then what will take place? Then the mark of the beast of Revelation 13 will set in, because he holds all the commerce, trade and everything in the world. फिर क्या वाकया होगा? तब मुकाशवा 13 के हैवान के निशान की मोहर लगाई जाएगी, क्योंकि दुनिया की सारी तजारत और लेन देन और हर एक चीज उसके कंट्रोल में होगी। And what will take place then? The mark of the beast will come in that no man can buy or sell except him that has the mark of the beast. और उसके बाद क्या होगा? तब हैवान की छाप आ जाएगी और फिर उस शख्स के अलावा जिसने हैवान की छाप ली होगी कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। Thank God, the church will be enjoying a great 3.5 years. Don't have to go through that. खुदा का शुक्र है कि कलीसिया 3.5 साल जलाल में खूब खुशी मना रही होगी और इस सूरत हाल में से नहीं गुजरेगी। Now notice, at the end time, at the end of the church ages now, he and his children are called the Antichrist, because anything that's against Christ is Antichrist. अब गौर करें, आखिरी घड़ी में, अब आखिरी कलीसिया जमाने में वो ये कहलाता है, वो और उसकी औलाद मुखालफे मसीह कहलाती है, क्योंकि जो कोई भी मसीह के खिलाफ है वो मुखालफे मसीह है। And anything that's against the word is against Christ, because Christ is the word. Now he's Antichrist. और जो कुछ कलाम के खिलाफ है वो मसीह के खिलाफ है, क्योंकि मसीह कलाम है, अब वो मुखालफे मसीह है। Then in Revelation 12:7-9, when Satan is cast out, the accuser. You put that down because you want to read it. We haven't got time. Now it's close 15:15. फिर मुकाशवा 12:7-9 में इल्जाम लगाने वाला शैतान गिरा दिया जाता है। अगर आप इस पर निशान लगाना चाहते हैं तो लगा लें, पर मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़ें। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मगर 15-20 मिनट बचे हैं जब तक के 10 नहीं बजते, फिर खत्म हो जाएगा, समझे? But in the Revelations 12:7-9, Satan, the spirit, the devil, which is up there now, accuser of our brethren. लेकिन मुकाशवा 12:7-9 में शैतान जो कि रूह है और इब्लीस कहलाता है, जो इस दौरान ऊपर है और हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला है। All right? The church is taken up and Satan is cast out. When the church goes up, Satan comes down. Then Satan incarnates himself in the Antichrist and is called the beast. Then Revelation 13, he sets the mark down. See? ठीक है, देखें, कलीसिया उठा ली जाती है और शैतान नीचे गिरा दिया जाता है। जब कलीसिया ऊपर चली जाती है तो शैतान नीचे आ जाता है। फिर शैतान अपने आप को मुखालफे मसीह में मुजस्सम करता है और हैवान कहलाता है। फिर इसके बाद मुकाशवा 13 में वो छाप देता है, समझे? When he that letteth, only now Christianity is left on the earth in its purity, is because him that letteth. Remember back here in Thessalonians? Setting up on the temple of God, calling himself God, forgiving sins on earth. मगर अब एक रोकने वाला है। अब जमीन पर सिर्फ मसीहत ही पाकीज़ा रह गई है, क्योंकि यहाँ रोकने वाला है। अब याद रखें, तसलीकियों में वो खुदा के घर में बैठकर अपने आप को खुदा कहलाता है और जमीन पर लोगों के गुनाह माफ करता है। And that'll go on, and iniquity shall abound and on, because it won't be known yet until his time to be revealed is called. और ये सिलसिला जारी रहेगा और बेदीनी बढ़ जाएगी, और ये सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि उसे जाहिर ना किया जाएगा, ताहम जब तक उसके जाहिर होने का वक्त नहीं आ जाता। And then the church will be caught away, and when it's caught away, then he changes himself from an antichrist
Now, oh my, the church, the great church, now he becomes the beast. Mm-hmm. I wish I could make people see that. और फिर कलीसिया ऊपर उठाई जाएगी, और जब वो ऊपर उठा ली जाती है तो फिर वो अपने आप को मुखालिफे मसीह से तब्दील करता है। ओ मेरे खुदाया, और कलीसिया फिर वो बहुत ही बड़ी कलीसिया में बदल जाती है, और फिर वो हैवान बन जाता है। काश के मैं ये बात लोगों को समझा सकूं। I remember the Antichrist and the beast is the same self-spirit. There's a Trinity. Yes, sir. It's 3 stages of the same devil power. Remember, Nicolaitia. See? It had to be incarnate before it could be crowned. अब याद रखें, हैवान और मुखालिफे मसीह एक ही रूह है। यहाँ तसलीस मौजूद है। जी हाँ जनाब, ये उसी अबलीसी कुव्वत के 3 दर्जे हैं। नाकीलियों को याद रखें। देखें कि ताज पहनने से पहले उसे मुजस्सम होना पड़ा। See? Now watch this. 3 stages. First stage is called Antichrist. Second stage is called the false prophet. Third stage is called the beast. देखें, अब उन 3 दर्जों पर गौर करें। पहले दर्जे में वो मुखालिफे मसीह कहलाता है, दूसरे दर्जे में वो झूठा नबी कहलाता है, और तीसरे दर्जे में वो हैवान कहलाता है। Notice, Nicolaitia, the Antichrist teaching that started in the days of Paul against God's Word. Antichrist. Then, he's called again the false prophet, which when the teaching become a man, he was a prophet to the teaching of the hierarchy of the Catholic Church. तवज्जो करें, नाकीलियों की तालीम यानी मुखालिफे मसीह की तालीम पलूस के जमाने में खुदा के कलाम के खिलाफ शुरू हो गई थी, और यही मुखालिफे मसीह है। और फिर दोबारा वो झूठा नबी कहलाया, लेकिन जब उस तालीम ने इंसानी जमा पहन लिया तो वो एक नबी बन बैठा ताकि तंजीमी ढांचे बल्कि कैथोलिक कलीसिया के तंजीमी ढांचे की तालीम दे। The Pope was the prophet to the false word, and that made him a false prophet. पोप झूठे कलाम का नबी है, और उसी ने उसे झूठा नबी बनाया है। The third stage is the beast, a man that's crowned in the last days with every power that pagan Rome ever had, because the 7-headed beast dragon was cast out of heaven and come incarnate in the false prophet. तीसरा दर्जा एक हैवान का है, एक ऐसा शख्स जो आखिरी अय्याम में बुत प्रस्त रोम की हर एक ताकत के साथ ताजदार होता है, क्योंकि वो 7 सरों वाला अजदहा जो आसमान से गिराया जाता है, वो आकर उस झूठे नबी में समा जाता है। There it is. He had 7 crowns, and he was cast out and thrown into the earth and received. वो यहाँ है, उसके 7 ताज थे, और वो जमीन और समुंदर पर गिरा दिया गया। All right. What are we saying? Who is this rider? This horse rider. You know what it is? It's Satan's Superman. ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? वो सवार कौन है? वो घुड़सवार कौन है? क्या आप जानते हैं वो कौन है? वो शैतान का सुपरमैन है। I went the other night, 2 brothers sitting in this church now. Brother Norman back there, and I believe Brother Fred was over to hear a man teach on the Antichrist. A well-known man, one of the best assemblies of God he's got. एक रात मैं अपने 2 भाइयों के साथ कहीं गया, जो अब भी यहाँ इस कलीसिया में बैठे हुए हैं। भाई नॉर्मन और मेरा ख्याल है कि भाई फ्रेड दोनों पीछे मौजूद हैं, और वहाँ हमने एक आदमी को मुखालिफे मसीह पर बोलते सुना, और वो असेंबलीज ऑफ गॉड के बेहतरीन लोगों में से एक बड़ा मशहूर आदमी था। And his interpretation of Antichrist was that they're going to take a vitamin of some sort out of a man and transfer this life out of a man into a great image that's going to step a city block at a time. And that's going. और उसकी मुखालिफे मसीह के मुतल्लिक तफसीर ये थी कि वो किसी किस्म के विटामिन लेंगे जो कि वो एक इंसान में से निकालेंगे, और उस इंसान की जिंदगी को निकाल कर एक बड़े बुत में डाल देंगे, और उस बुत का एक कदम सिटी ब्लॉक के बराबर होगा। वो ये है। Could you imagine a man filled with the Holy Ghost under such illusion as that, or claim to be? क्या आप यकीन कर सकते हैं
कि ये एक पाखरू से ममूर शख्स ऐसा बयान दे सकता है या ऐसा दावा कर सकता है? When here's the Bible says who the Antichrist is. It's not it's a man. Notice, this writer is nothing but Satan's Superman, an incarnate devil. He's an educated genius. Now, I hope you got your ears open. जबकि बाइबल वाज़े अल्फाज में बयान करती है कि मुखालिफ मसीह कौन है, वो और कोई नहीं है बल्कि वो एक इंसान है। गौर करें, ये घोड़सवार कोई और नहीं है बल्कि यही शैतान का सुपरमैन है जो मुजस्मे अबलीस है। वो एक तालीम याफ्ता और गैर मामूली ज़हीन शख्स है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने अपने कान खोल लिए हैं। Is trying one of his children out not long ago on a television cast to see if he wasn't smarter than the next man to run for presidency. कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि टेलीविजन पर वो उसकी औलाद के लिए कोशिश कर रहे थे ताकि देखें कि आइंदा सदर के ओहदे के लिए आने वाले शख्स से वो ज्यादा ज़हीन है या नहीं। समझे? But however, he's got a lot of wisdom. So Satan, he tries to sell it. He sold it to Eve. He sold it to us. We've been wanting the Superman. We got it. लेकिन बहरहाल वो ज्यादा ज़हीन है। इसी तरह शैतान भी है। खैर, वो इसे बेचने की कोशिश करता है। उसने इसे हवा के आगे बेचा और उसने इसे हमारे आगे भी बेचा। हम सुपरमैन के आरजूमंद हैं और वो हमें मिल गया है। All right. The whole world's wanting a Superman. They're going to get it. Just wait till the church goes up and Satan's cast out. He'll incarnate. That's right. They want somebody who can really do the job. He'll do it. ठीक है, सारी दुनिया सुपरमैन चाहती है और वो उनको मिलने वाला है। सिर्फ तब तक इंतजार करें जब तक कलीसिया ऊपर नहीं जाती और शैतान नीचे नहीं गिरा दिया जाता, तब वो मुजस्सम होगा। ठीक है, वो किसी ऐसे शख्स को चाहते हैं जो वाकई ही ये काम कर सकता है और ये काम वो ही करेगा। Educated. This is a Satan Superman with education, with wisdom, with church theology, of his own word, of his own making. And he rides his white denominational horse to deceive the people. And he will conquer every religion of the world. Because they've all gone into the confederation of churches and the world confederation of churches. तालीम याफ्ता वो ऐसा होगा। वो शैतान का सुपरमैन है जो तालीम और जहानत और अपने ही कलाम का बनाया हुआ कलीसियाए इल्मे इलाहियात रखता हो और वो सफेद तंजीमी घोड़े पर सवार होकर लोगों को धोखा देगा। वो दुनिया के हर मजहब को फतह करेगा क्योंकि वो सब कलीसिया इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे और कलीसियाओं का आलमगीर इत्तेहाद होगा। उन्होंने पहले ही इमारतें तमीर कर ली हैं और सब कुछ तैयार कर लिया है। There ain't one thing left. Every denomination stuck right into it. The Federation of Churches. And what's back of it? Rome and the popes now crying, we're all one, let's come together and walk together. और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हर तंजीम मुकम्मल तौर पर कलीसियाए इत्तेहाद में शरीक है और इस सब के पीछे किसका हाथ है? रोम का। और अब पोप चीख रहा है कि हम सब एक हैं, आएं सब मिलकर चलें और इकट्ठे काम करें। And these people, even some of you full gospel people, have to deny your evangelical teaching to take such a step as that. और इन लोगों को, हत्ता के आप फुल गॉस्पल वाले लोगों को, आपको भी बाइबल का इनकार करना पड़ेगा, ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। What have you done so blind to that denominational thing? You've rejected truth and truth is set before them and they walked away from it and left it. सोचें, आपने क्या किया है? आप ऐसी नाम नहाद तंजीम के लिए अंधे हो चुके हैं। देखें, आपने सच्चाई को रद्द कर दिया है, हालांकि सच्चाई उनके सामने रखी गई और वो उससे किनारा कशी कर गए और उसे तर्क कर गए। And now they've been given over to a strong delusion to believe a lie and be damned with it. That's exactly what it is. इस सबब से अब उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजी गई है ताकि वो झूठ को सच जाने और इस सबब से सजा पाएं। वो बिल्कुल यही कुछ है। And the Antichrist takes it all. And the Bible said that he deceived all. A double L.
all upon the face of the earth whose names were not written under those seals from the foundation of the world. Now, the Bible said he did it, he did it. और मुखालफे मसीह ये सब कुछ लेता है और बाइबल कहती है कि उसने सबको धोखा दिया। ALL उसने दुनिया के तमाम लोगों को जिनके नाम बनाए आलम से पेशतर इन मोहरों के अंदर नहीं लिखे गए धोखा दिया। अब अगर बाइबल कहती है कि उसने ऐसा किया तो उसने ऐसा जरूर किया है। They say, well, I belong. There you are. That's just exactly. It's the same prostitute institution. It's the same system that started in the beginning, which is Antichrist throughout. लोग कहते हैं ठीक है, मगर मैं फलां से ताल्लुक रखता हूँ, आप इस मकाम पर हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल वही कुछ है। ये वही कस्बियों का अदारा है। ये वही निजाम है जो इब्तदा में शुरू हुआ और जो शुरू से लेकर आखिर तक मुखालफे मसीह है। I'll hear from it, but it's the truth I expected. Hey. मैं इससे सुनूंगा, ये ऐसा ही है क्योंकि ये सच्चाई है, मुझे यही तवक्को है। आमीन। Now, notice, he'll conquer and almost has in his grip right now while he's still Antichrist before he becomes beast. You talk about cruel punishment. You just wait. Watch what them that's left here on earth will have to go through with. अब तवज्जो दे, वो फतह करेगा और अब भी तकरीबन सब कुछ उसके कब्जे में है, लेकिन अभी तक हैवान बनने से पहले वो मुखालफे मसीह है। आप जबरदस्त सजा की बात करते हैं। आप जरा इंतजार करें, देखें वो जो जमीन पर रह जाएंगे उन पर क्या गुजरेगी। जी हाँ, There will be weeping and wailing and gnashing of teeth, for the dragon, Rome, spurted water out of his mouth to make war with the remnant of the woman's seed that was left upon the earth after the bride had been selected and took out. वहाँ रोना और मातम और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि अजदहा रोम ने अपने मुंह से पानी निकाला ताकि औरत की नस्ल के बकिया से, यानी उनसे जो दुल्हन के चुनाव और उठाए जाने के बाद दुनिया में रह गए थे, जंग करे। और अजदहा बकिया के साथ जंग करता है जो अंदर आना नहीं चाहते थे और वो मारे जाते हैं। और अगर मुमकिन होता तो हकीकी कलीसिया भी उसमें से गुजरती, लेकिन आप देखें कि वो मसीह के फजल से उसके खून के नीचे है और वो किसी भी मुसीबत से नहीं गुजर सकती। इसलिए उनके लिए मुसीबत का कोई दौर नहीं, अब सिर्फ कलीसिया का उठाया जाना बाकी है। आमीन सुम आमीन। खुदा की तारीफ हो मैं इससे किस कदर मोहब्बत करता हूँ। Let me tell you, we're telling what a conqueror he's going to do, and he's really going to conquer. He's already done it. It's just already sewed up, that's all. Go short with the money, filthy lucre. Exactly. They love money more than God. मैं आपको बताता हूँ, हम एक फाते के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे फतह करेगा, और वो वाकई फतह करेगा, और वो तकरीबन उसे फतह कर चुका है, और उसने ये सब कुछ पहले ही जोड़ लिया है। वो आलूदा सूदमंद दौलत के साथ उसे इकट्ठा करेगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो खुदा की निस्बत दौलत को ज्यादा चाहते हैं।